ان کے بارے میں بتاتا چلوں. نوید مشتاق صاحب, اگین ون آف دا پرسن آئی فاؤنڈ آن دی انٹرنیٹ. نوید صاحب ورکس فار این آرگنائزیشن جس پہ یہ کام کرتے ہیں اور جن کے توسط سے ماشاءاللہ ان کی بہت پذیرائی ہوتی ہے. ان کو ابھی لیٹلی جانا تھا بینکاک, کچھ عرصے پہلے ان کو ملیشیا جانا تھا. آئی مسڈ ہم. مجھے اپنے پریویس پروگرام میں ان کو بلانا تھا اور ایک ڈائریکٹر کی ڈانٹ بھی پڑی کہ میں نے ان کو ٹائم پہ نہیں بلایا اور یہ چلے گئے, اور اس دفعہ بھی میرے ہاتھ سے نکل رہے تھے, لیکن خدا کی ایسی کرنی تھی کہ لکھا تھا ان کا, اینڈ اٹس آل ان ہز اینڈ مائی ڈیسٹنی دیٹ ہی از ہیئر امانگس اس ٹوڈے. نوید مشتاق صاحب کی پرائمری ایجوکیشن ڈھوک کنیال اسکول سے ہے. مڈل ایجوکیشن وہاں سے 2 کلومیٹر دور ڈھوک لونا اسکول سے. میٹریکولیشن آپ ہائر سیکنڈری اسکول جیلم سے کرتے ہیں اور ایف اے ایس پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. ان کی بہت ہی انٹرسٹنگ ایکسپیرینسز ہیں لائف کے. ایز اے لیبرر یہ کام شروع کرتے ہیں راولپنڈی جی سی ہوٹل میں. اس کے بعد ایز اے سیلز مین ایک الیکٹرانک شاپ پہ کام کرتے ہیں. ایک آفس بوائے کے طور پہ رحمان آباد پنڈی میں کام کرتے ہیں. ٹیلرنگ شاپ پہ بھی اپنا ہاتھ آزماتے ہیں رحمان آباد میں. پھر اسسٹنٹ مینیجر بنتے ہیں راجپوت ریکروٹنگ ایجنسی میں. پیٹرول پمپ پہ بھی میری طرح انہوں نے کام کیا. میں نے امریکہ میں کیا تھا, انہوں نے پاکستان میں کیا. انشورنس ایجنٹس بھی رہے اسٹیٹ لائف کے. نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی میں اس کے بعد کام کیا. ٹائمز نامی ایک چائنیز ادارے میں ڈائریکٹ سیلز کمپنی میں کام کرتے رہے, اور اب ماشاءاللہ اپنا ریئل اسٹیٹ بزنس چلا رہے ہیں. لیٹس جوائن ہینڈس ٹوگیدر فار مسٹر نوید مشتاق. بہت بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے, جس کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم سب یہاں موجود ہیں, جو خالق بھی ہے, جو مالک بھی ہے, جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی. سمیع اور بصیر ایسا کہ سیارات میں سیاگار کے اندر سیاہ پتھر پر چلنے والی چمٹی بھی ڈگمگا جائے تو نہ صرف اس کی پکار کو بھی سنتا اور دیکھتا ہے بلکہ اس کی مدد بھی کرتا ہے. ان دعائے کلمات کے ساتھ معزز ٹرینرز کو, رسپیکٹڈ پرنسپل کو اور شیخ محمد علی صاحب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے جی آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ سب نے اتنی رسپیکٹ دی, اتنے اچھے طریقے سے ویلکم کیا. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی رسپیکٹ میں ہزاروں گنا اضافہ کرے. آمین کہنے پہ تو نہیں کوئی ٹیکس لگا سر, سیلز ٹیکس. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بڑی بڑی کامیابیاں دیں. آمین ثم آمین. اس کے بعد بیٹا خاص کر جو اسٹوڈنٹ بیٹھے میرے آپ سے کچھ سوال ہوں گے, کچھ باتیں ہوں گی. سوال توجہ سے سننا ہے کیونکہ سوال توجہ سے نہ سنا جائے تو جواب کچھ اور ہو جاتا ہے. جیسے ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر نے بچوں سے پوچھا, بچوں کو پڑھا رہے تھے تو پڑھاتے پڑھاتے اچانک انہوں نے بچوں سے ایک سوال کیا. بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ دلی میں قطب مینار ہے, تو دیکھا کچھ بچے توجہ سے نہیں دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے ایک بچے کو کھڑا کیا, کہا بیٹا بتاؤ میں نے ابھی کیا پڑھایا ہے. تو چونکہ اس کی توجہ نہیں تھی, کہتے سر آپ پڑھا رہے تھے دبئی میں کتا بیمار ہے. تو الفاظ جو ہے وہ کافی بدل جاتے ہیں. تو اس لیے آپ کی توجہ ہے جی بیٹا, توجہ ہے, چیک کر لوں. اوکے, جب میں 1 کہوں گا آپ کھڑے ہو جائیں گے اور جب 2 کہوں گا تو بیٹھ جائیں گے. ریڈی ریڈی اوکے 2. دیکھیں 90% ہل کے رہ گیا حال. اوکے سو توجہ سے ہم ایک سوال کیا گیا تھا مجھ سے لائف کے اندر جس نے چینج کیا مجھے. میں چاہوں گا کہ سوال آپ سے کروں. فرنٹ والی لائن چھوڑ دیجیے, ماشاءاللہ سارے ٹرینرز ہیں آلریڈی نو ویری ویل. تو میں ڈائریکٹلی اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہوں. تو بیٹا آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز ہے کیا؟ کیا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں سوچا تو بھی سوچیں. آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ پیرنٹس, ٹائم, ایجوکیشن. یا آپ نے سب نے اپنی جگہ اچھا صحیح جواب دیا ہے. انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ ہے اس کی لائف. کہ وہ لوگ جو قبرستان میں دفن ہو گئے ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے کہ ان سے لائف, ان کی لائف دی اینڈ, اور آپ کے پاس ابھی لائف باقی ہے. یس اور نو جی پلیز لسن, یس اور نو. تو آپ کے پاس لائف ہے؟ کتنے لوگوں کے پاس لائف ہے؟ تو کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھ کے آپ کا رکھنا نہیں ہے میرے پاس. اوکے, تو نیکسٹ کوشچن, اس لائف کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس مائک ہے, میں بول رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے.
सामने कैमरा है, वहां पता है कि ये वीडियो बन रही है, बाद में आप देख सकेंगे। आपके पास एक चीज है जो सबसे कीमती है, उसका मतलब आपको पता है? लाइफ। कभी ऐसा हुआ कि आप जूते खरीदने के लिए कपड़ों वाली दुकान में घुस गए और कपड़ा खरीदने के लिए जूतों वाली दुकान में घुस गए हो? क्योंकि आपको पता है कि जूते जूतों वाली दुकान से मिलते हैं और कपड़े कपड़ों वाली दुकान से मिलते हैं। तो इतनी कीमती चीज है, अगर इसके बारे में पता ही नहीं है, इसका मतलब ही नहीं पता, तो फिर ये बेकार है। बहुत सारे लोगों की तरह बेकार है। रोड पे पड़ी आपको नजर आती है, 60-70 साल, बहुत बड़ी लाइफ थी, लेकिन रोड पे पड़े हुए भीख मांग रहे होते हैं, लोग मांग रहे होते हैं, मांग मांग के खा रहे होते हैं। आपके पास भी वही चीज है लाइफ, जिसको इसका मतलब पता चल जाए वो इससे बहुत कुछ बना जाता है, और जिसको इसका मतलब ना पता चले वो 60 साल बाद उसी रोड पे पड़ा हुआ होगा। तो जिंदगी का मतलब जब पूछा जाता है, टाइम की कमी है, वरना बहुत सारे लोगों से पूछा जाता तो बहुत सारे लोगों के डिफरेंट जवाब होते हैं। कुछ तो कहते हैं जिंदगी एक दरिया है और डूब के जाना है, ठीक है जी, खुद ही उसको बनाया हुआ है, दरिया बनाया हुआ है। तो बेटा जिंदगी जो है, लाइफ जो है, ये अपना मतलब खुद बनाती है। तो लाइफ का स्पेलिंग बोलिएगा, LIF, यही मतलब है। L से बनता है लिव, I से बनता है इन, F से बनता है फ्यूचर, E से बनता है एवर। कि इस दुनिया के अंदर वो लोग जो फ्यूचर में रहते हैं, जो आने वाले कल की बात करते हैं, जो आने वाले दौर की बात करते हैं, जो फेलियर इसलिए फेलियर है कि उसके 24 घंटों में से आधा टाइम तो सोने में गुजरता है, बाकी जो आधा टाइम है उसमें से मैक्सिमम वो माजी की नाकामियों का रोना रोता रहता है। और जी मेरे नाल तो हो ही बुरा है, मैं तो पैदा ही होया तो मेरे तो पहले 4 भरा पैदा हो, किसी खुशी नहीं बनाई। यस, सो हर वक्त जो है हम ना माजी को सोचते रहते हैं, फेलियर को सोचते रहते हैं। सो लाइफ का मतलब है लिव इन फ्यूचर एवर। कि बेटा जिंदगी में जो भी बनना है वो क्या बनना है, ये बात आगे चल के हम करते हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी अच्छी बातें हो गई, जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ अपना हिस्सा इसमें डालना चाहूंगा। अदरवाइज बहुत कुछ आज सीखा है, मेरी अपनी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है। और मैं समझता हूँ कि बैंकॉक जाने का टूर मैंने कैंसिल किया, मेरी 2 दिन पहले की फ्लाइट थी, लेकिन मैंने कल अपनी करवाई क्योंकि 3 दिन से घूमना फिरना था। तो अगर मैं चला जाता, वो 3 दिन जो मैंने घूमना फिरना था, यकीन करें वो एक तरफ, और आज का या साल में गुजरा हुआ 1 मिनट एक तरफ। तो लोगों से जब कहा जाता है, स्टूडेंट से जब कहा जाता है कि बेटा अपने ड्रीम बड़े बड़े देखो, अपने ख्वाब बड़े बड़े देखो, तो सबसे बड़ा जो फियर उनके माइंड में आता है वो ये है कि ये पूरे कैसे होंगे। मैं एक आम बंदा, एक गरीब बंदा कैसे करोड़पति बनने का ख्वाब दे सकता है? तो एक दफा ट्रेनिंग में सवाल किया गया कि कितने लोग करोड़पति बनना चाहते हैं? तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर करोड़पति का तो पता नहीं है, पति अलबत्ता जरूर बन जाएंगे। अच्छा, लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा फियर है कि हाउ, कैसे होगा, कैसे। तो आज आपको मैं एक बात बताने जा रहा हूं, ये आप हमेशा याद रखिएगा, होगा कैसे, इसका जवाब भी ये लाइफ खुद देती है। सर इस बात का भी जवाब इसी लाइफ के अंदर मौजूद है। LIF, लाइफ। L से बनता है लर्न, सीखना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर जब इंसान आता है तो ना वो मैकेनिकल इंजीनियर होता है, ना वो डॉक्टर होता है, ना वो पायलट होता है, वो कुछ भी नहीं होता। उसे जो भी बनना है वो बन सकता है, सिर्फ उसे सीखना पड़ेगा। यस और नो? यस और नो? तो सीखना पड़ेगा, ये पहला स्टेप है जिंदगी के अंदर कुछ भी बनने के लिए। तो दूसरा स्टेप क्या है? इंप्रूव करना पड़ेगा। आई से बनता है इंप्रूव। इस मुआशरे में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, उनके साथ बैठ जाए, आधे घंटे में पूरे पाकिस्तान का ऐसे तबसरा कर देंगे कि अगर इन्हें वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए, अगले 1 घंटे में पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन अपनी लाइफ अगर उनकी स्टडी करें तो दोनों हाथ खाली, लाइफ में कोई कामयाबी नहीं। तो वजह कई लोग पढ़ लिख बहुत जाते हैं लेकिन इंप्रूव नहीं करते। तो बेटा जिंदगी में इतना सा पढ़ा है, इतना सा इंप्रूव कर लें, थोड़ा सा सीखा है, थोड़ा सा इंप्रूव कर लें। अगर आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करते तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है। आपके पास डिग्री होगी, आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन आप फिर भी फेलियर होंगे क्योंकि आप अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों के बैंकों में बहुत सारा पैसा पड़ा है, देखो तो लगता है कि कई दफा ऐसे लोग आते हैं तो बंदा उनको देखते हैं, अच्छा बाबा माफ करो। कई दफा जिंदगी में ये एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे उसने कहा अच्छा बाबा माफ करो, और भाई जी मैं तो पता पूछना थी,
میں نے تو یہ ایڈریس پوچھنا تھا، میں مانگنے والا نہیں ہوں. تو وہ بظاہر حلیہ ایسا بنائے ہوتے ہیں، تو اللہ نے دیا ہے تو اس کا استعمال اپنے آپ کو امپروو بھی کرنا چاہیے. تو زندگی کہتی ہے کہ لرن کرو، جو بھی بننا چاہتے ہو اٹس اپ ٹو یو، یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. چوائس، اگر اس دنیا میں چوائس نہ دی ہوتی اللہ تعالیٰ نے تو جنت اور دوزخ کا صاحب کیوں ہوتا؟ بس جو سارا کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی، جو کچھ جنت میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیج دینا کسی کو دوزخ میں نہیں. حساب کتاب ہونا ہے، کیونکہ آپ کو چوائس دی گئی تھی نیک کام کرنے کی بھی اور برے کام سے بچنے کی بھی. تو آپ کی یہ چوائس ہے جو آپ کو کچھ کو جنت میں اور کچھ کو دوزخ میں لے کے جائے گی. یس اور نو؟ تو زندگی کہتی ہے کہ آپ لرن کریں، امپروو کریں، اور FE فار ایور، رہتی دنیا تک یہی فارمولا ہے. چاہے یہاں میں ماشاءاللہ اتنے ٹرینرز آئے، یہاں پر دنیا کا بیسٹ ٹرینر کھڑا کر دیا جائے، جو دنیا کا سب سے مہنگا ٹرینر ہے، اگر کالج والے اسے یہاں پہ بلا لیں، وہ جسٹ صرف آپ کو بتا سکتا ہے، سکھا کچھ آپ کو لرن، آپ کو کچھ بول سکتا ہے، کچھ آپ کو سکھا سکتا ہے، لیکن امپروو آپ نے کرنا ہے، سننا آپ نے ہے. ساری زندگی یہ فارمولا ہے، کیا بننا ہے، کدھر جانا ہے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن جہاں بھی جانا ہے یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا اور امپروو کرنا پڑے گا. سو آج کا چونکہ ٹاپک تھا فیلئر فیسٹیول، فیلئر فیسٹ، تو فیل فیسٹ تو میں چاہوں گا کہ کچھ اسپیسیفک فیلڈز ہیں جہاں پہ ہمیں بڑی توجہ جو ہے وہ درکار ہوتی ہے فیلئر سے بچنے کے لیے. میں نے بہت سارے لوگوں کو بڑے بڑے فیلئر دیکھے، لیکن وہ جو فیلئر سمجھ رہے تھے کہ لائف کے بڑے فیلئر ہیں وہ بڑے نہیں تھے، وہ کہیں چھوٹے فیلئر تھے. تو زندگی میں 5 ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کتنے سکسیسفل ہیں اور کتنے فیلئر ہیں. جاننا چاہیں گے؟ آپ جاننا چاہیں گے بیٹا؟ آپ کی تالیاں بتائیں گے کہ آپ جاننا چاہتے ہیں. کم ٹائم میں یہ 5 فیلئر ایسے ہیں کہ اس کے اوپر یہاں 5 گھنٹے مسلسل بولا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف شارٹ ٹائم میں ایک 2 باتیں آپ تک پہنچاؤں گا تاکہ آپ کو یاد رہے، کچھ یاد رہ جائے. سب سے پہلا جو فیلئر ہے لائف کے اندر انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے وہ ہے ایجوکیشن. انسان جو ہی ایک ہوش سنبھالتا ہے، آج کل تو 2.5-3 سال کا بچہ بھی فیڈر ہی اس کے پاس ہوتا ہے تو ماں اسکول میں چھوڑاتی ہے کہ بچہ پڑھے گا. سو جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کبھی ٹیسٹ میں فیلئر کا سامنا ہوتا ہے، کبھی ایگزام میں فیلئر کا سامنا ہوتا ہے، کبھی فائنل میں فیلئر کا سامنا ہوتا ہے. سو وٹ؟ کیا آپ دنیا کے پہلے بچے ہیں جو فیل ہوئے ہیں؟ کیا اس سے پہلے اس جگہ پہ کوئی اور نہیں فیل ہوا؟ اگر اس سے پہلے بھی لوگ فیل ہوئے ہیں تو یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر آپ بھی ہو گئے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. سو لائف کے اندر ایجوکیشن میں اگر فیلئر آپ کو ملا ہے، ناٹ اے بگ پرابلم، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کیوں؟ ایک ڈگری کے لیے آپ پڑھ رہے تھے، ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ملنا تھا، اس میں وہ ایک دفعہ فیل ہونے کا مطلب یہ ہر کس نہیں ہے کہ چانسز بھی ختم ہو گئے. لیکن وہ ایجوکیشن جو ایسی کسی ورکشاپ سے ملتی ہے، وہ ایجوکیشن جو آپ کو بزرگوں کی محفل سے ملتی ہے، وہ ایجوکیشن جو اسلام سے ملتی ہے، وہ ایجوکیشن جو دین سے ملتی ہے، اگر اس میں آپ فیل ہو گئے تو یہ اس سے بڑا فیلئر ہوگا. کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن وہ بہت بڑے عہدے پر کام کر رہے ہیں، وہ ٹرینرز ہیں، وہ ٹریننگ دیتے ہیں، لوگوں کو سکھاتے ہیں. کیونکہ میں نے ایک استاد سے پوچھا، وہ کہا بیٹا ایجوکیشن اس ڈگری کا نام تھوڑا ہے جو اسکول اور کالج یونیورسٹی سے ملتی ہے. وہ کہا بیٹا آپ بزرگوں کی محفل میں بیٹھے، کوئی اچھی بات کہی، وہ آپ نے یاد رکھی، اس پہ عمل کیا، یہ بھی ایجوکیشن ہے. کئی لوگ ان پڑھ فیکٹریوں کے مالک ہیں، ان پڑھ نہیں ہے، ان کو کہا جاتا ہے ان پڑھ، لیکن ان پڑھ نہیں ہے. کیوں؟ ڈگری نہیں ہے نا، لیکن بزنس کرنا تو سیکھا ہے نا، کام کرنا تو سیکھا ہے نا. تو کئی پڑھے لکھے بے روزگار ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، نوکری نہیں ملتی، اور کئی ان پڑھ روز آنا لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں. تو یہ کہ ایجوکیشن صرف اس ڈگری کا نام نہیں ہے، ایجوکیشن ہے کہ لائف میں سراؤنڈنگ میں سکھانے والے لوگ موجود ہیں، سمجھانے والے لوگ موجود ہیں. تو وہ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو اگر آپ انڈرسٹینڈ نہ کر پائے تو بہت سارے لوگوں کا جو تجربہ ہے اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے. آج دنیا میں وہ کامیاب ہے جو اپنے تجربے کرنے کے بجائے دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے. یس اور نو؟ یس اور نو؟ تو یہ پہلا سٹیپ ہے ایجوکیشن. دوسرا سٹیپ بہت ہی قیمتی ہے اور وہ ہے ایٹیٹیوڈ. کہ آپ کا رویہ، کیا آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ اگر دنیا کی سب سے بڑی ڈگری لے لیں لیکن آپ کا رویہ گستاخانہ ہے، آپ لڑاکا ہیں، آپ جو ہے ہر بات کو نیگیٹو لیتے ہیں، تو کیا آپ اپنے آپ کو کامیاب کہہ سکتے ہیں؟ بولے.
सो एटीट्यूड, एक सर्वे किया गया, देखा गया कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में, कौमों में और फेलियर जो नाकाम कौम में, उनमें फर्क क्या है, तरक्की पजीर कौमों में फर्क क्या है। सबसे पहले चेक किया गया एजुकेशन, तो जवाब था नहीं। फिर चेक किया गया दौलत, जवाब था नहीं। फिर चेक किया गया उसकी कल्चर सकावत, जवाब था नहीं। तो जो सबसे बड़ा फर्क निकला वो था एटीट्यूड, वो था रवैया, कि अगर हम रवैये में फेल हो गए, अगर हम अपने उस्तादों का अदब करना छोड़ दिया, अगर अपने वालिदैन का अदब करना छोड़ दिया, अगर हम अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज में बात करना शुरू हो गए, अगर हम उस्तादों के सामने ओए करना शुरू हो गए, उनके सामने हम बैठे रहे, खड़े ना हुए, तो ये हमारा जिंदगी का इतना बड़ा फेलियर है कि शायद ये कहीं भी नहीं मिलेगा, चलिए इससे बड़ा फेलियर नहीं होगा। सो एटीट्यूड, हमारा रवैया क्या है। उसके बाद एटीट्यूड के बाद जो आता है वो आता है ड्रीम, ख्वाब। इसमें कोई शक नहीं है कि वो इंसान जो ख्वाब देखता है वही पूरे करता है। आप में से कोई चांद पे गया? बोले को गया भी को होगा तो जैसे ही आंख खुली होगी वापस आ गया होगा। सो लेकिन क्या इंसान चांद पे पहुंच गया? पहुंच गया ना? आप में से किसी ने टीवी बनाया लेकिन आप टीवी देखते हैं? मोबाइल बनाया किसी ने लेकिन मोबाइल यूज करते हैं? आप में से किसी ने कैमरा बनाया लेकिन यूज करते हैं? तो इसका मतलब क्या है कि वो ये उन्होंने बनाए हैं जिनका ये ख्वाब था। जिसका मतलब अगर आप भी इतना बड़ा ख्वाब देख लेंगे पूरा कर सकते हैं, लेकिन देखना पहली शर्त है, सोचना पहली शर्त है, अपना ख्वाब बनाना पहली शर्त है। वो डायरियों के ऊपर उलट पुलट चीजें लिखने की बजाय कभी अपनी डायरी पे अपना ख्वाब तो लिखें, और जितना बड़ा लिखें उसको पूरा होने का जो पहला स्टेप है वो इतना सस्ता है कि आप में से हर कोई अभी के भी वो कर सकता है। मतलब आप में से मैक्सिमम को क्या ख्वाब देख सकता है कि मैं अरबपति बनना चाहता हूं, अभी के भी बन सकता है। उसका जो पहला स्टेप है सिर्फ वो उठाने की देर है। और वो पहला स्टेप क्या है? आप सब ने इस्लामियात पढ़ी है, उसमें एक हदीस पाक है, एक कौल मारक है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात। इसका मतलब क्या है? जोर से बोले, क्या है? अमल का दारोमदार। तो नियत करने पे कितने पैसे लगते हैं? 50 लाख या 50 पैसे? एक सिंगल पैसा भी नहीं लगता। लेकिन ये बात तय है, आज जो कुछ मैं अपने पिछले कुछ अर्सा पहले के सोच और नियत की वजह से है, और आज के बाद जो कुछ होंगे वो आज की नियत की वजह से होंगे। फर्ज करें दो लोग हैं, मिस्टर ए मिस्टर बी। मिस्टर ए ने जिंदगी में अरबों रुपए की डोनेशन दी, अरबों रुपए के उसने एसेट्स बनाए जो गरीबों के लिए वक्फ कर दिए, मसाजिद बनवाई, मदरसे बनवाए। और मिस्टर बी ने आज रात को नियत की, जब बेड पे लेटा तो उसने कहा अल्लाह मियां है तो कुछ नहीं है पास, लेकिन अगर मुझे तू दे देना तो मैं ये सारे काम करूंगा जो इससे किए। उस रात दोनों की डेथ हो गई, हिसाब किताब शुरू हुआ। आप बताइए किसका सावधान होगा, ए का या बी का? वाई? यस, उसने किया है, हिसाब होगा। कहीं गलत तो नहीं कर दिया, कहीं डंडी तो नहीं मार दी, कहीं ज़कात देनी थी रिश्तेदारों को उठा के दूर तो नहीं दे दी, और रिश्तेदारों के साथ बुग़्ज़ ना तो नहीं रखा, कि लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, या देते हुए की तस्वीर तो नहीं बनाई कि अखबारों में आएगी मेरा नाम होगा। वो बड़ा लंबा चौड़ा साफ देना पड़ेगा उसे। लेकिन दूसरी तरफ मिस्टर बी ने जस्ट नियत की थी, नियत। फरिश्ते आके कहेंगे, देखेंगे साहब का, अल्लाह ताला से कहेंगे अल्लाह मियां है तो बड़ा गुनहगार, लेकिन सोने से पहले रात को ये नियत कर ली थी। तो उस नियत पे मेरा ये ईमान कहता है, आई बिलीव कि आपका भी ईमान कहता होगा कि वो सीधा जन्नत में जाएगा, उसको पूरा सवाब मिलेगा। यस और नो? यस और नो? आपकी तालियां बताएंगे कि आप एग्री करते हैं। तो ड्रीम के हवाले से एक जस्ट शॉर्ट सी स्टोरी। यूके के अंदर एक कंपनी ने अखबार में ऐड दिया कि हमें केमिकल इंजीनियर चाहिए। तो बहुत सारे चले गए इंजीनियर, उन्होंने इंटरव्यू दिया और लंच का टाइम हो गया। लंच के टाइम पे 3 लोग बाकी बचे, एक पाकिस्तानी इंजीनियर, एक इंडियन और एक बांग्लादेशी। तो कंपनी ने कहा चूंकि आप हमारे कहने पे आए थे, लंच का टाइम हो गया, तो सामने रेस्टोरेंट में जाइए, लंच कीजिए, बिल आपने नहीं देना। तो तीनों चले गए। बंगाली ने देखा तो उसने कहा यार मेरे लिए वो चावल मछली ले आओ, चावल मछली आ गए। इंडिया ने कहा मेरे लिए वेजिटेबल रोटी ले आओ, वो आ गए। अच्छा, पाकिस्तानी ने सोचा बिल तो कंपनी ने देना है, मैं क्यों परहेज करूं? वो कहता है इस मेन्यू में जो कुछ दर्ज है सारा कुछ ले आओ। छोड़ा है बेटा, हैरान हुआ, उसने कहा और भी लोग हैं? उसने नहीं मैं अकेला हूं, ले आओ। अच्छा, उसने ला के ना 2 टेबल सजा दिए। तो उस पाकिस्तानी ने कुछ खाया, कुछ चखा, कुछ सूंघ के छोड़ दिया कि खुशबू ही नहीं थी। अच्छा, वो तीनों का बिल बन गया, साइन किए,
बंगाली का बिल बना $5, इंडियन का बना $10, पाकिस्तानी का बिल बना $55। साइन किए चले गए, तीनों को नौकरी मिल गई। अच्छा, कुछ हफ्ते बाद तीनों एक वीकेंड पे इकट्ठे हुए, तो बात में वो इंडियन बंगाली से कहता है, ओ भाई आपने मुझे ना देना है $1000, मुझे ज़रूरत है। बंगाली कहता है यार कैसे दूं, मेरी तो $2000 तनख्वाह है, $1000 घर भेज दिया, 1000 तो मेरा खर्चा होगा मुश्किल से। इंडियन कहता है क्या बकवास करते हो, मेरी तनख्वाह $3000 है। तो पाकिस्तानी कहता है तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? कहता है क्यों? कहते मेरी तनख्वाह $5500 है। कहा वो तीनों वो दोनों लड़ पड़े, यानी पाकिस्तानी जो रिश्तेदार है इसको इतनी तनख्वाह देते हैं। अगले दिन मैनेजर के पास, वो कहा भाई वजह क्या है कि हम एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट में हैं, ये तनख्वाहों का डिफरेंस क्यों है? तो मैनेजर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, वो आप जिंदगी में याद रखिएगा। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप सबकी तनख्वाह अपनी जगह ठीक है। वो कहा कैसे? उसने बंगाली से कहा जो कुछ आप खाते हो उसके लिए $2000 बहुत है। इंडियन से कहा जो कुछ आप खाते हो उसके लिए $3000 बहुत है। लेकिन कहते मेरे यकीन करो जो कुछ पाकिस्तानी खाता है इसके लिए 2500 भी कम है। तो बिग ड्रीम, ख्वाब पूरे हो ना हो ये बात की बात है, ये फैसला आप नहीं कर सकते। आप दीवार के इस पार तो देख सकते हैं, उस पार नहीं देख सकते। इस पार देख के अपने ख्वाब तो बनाएं, अपने ख्वाब बड़े करें। कैसे पूरे होंगे? वो ऊपर ज़ात बैठी है जो ये कहती है कि मांगने वाले मांग। अगर तू ये भी मांग ले कि जमीन से लेकर आसमान तक जो कुछ है वो मुझे दे दे और मैं तुझे दे भी दूं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं याद रख मेरे खजाने में इतनी कभी भी नहीं आती जितना सुई को पानी में डुबो के बाहर निकाल उसकी नोक पे पानी लगा। तो मांगने वाले के हाथ का मतलब है कमी है कोई। वो कभी तन्हाई में मांगा नहीं उसने, वो कभी रो के मांगे नहीं उसने कभी सजदे में जाके मांगा ही नहीं। वो रात के पिछले पैर जब उसकी आंख खुली तो सजदे में गए नहीं अल्लाह से मांगने के लिए। ये बहुत बड़ा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि इंसान अगर रात के पिछले पैर तू उठा और तूने वुजू किया और सजदे में सर रखा और तूने जो कुछ मांगा मैंने तुझे ना दिया तो मैंने तुझसे बेवफाई की। और अगर तू उठा और तू सो गया तो तूने मुझसे बेवफाई की। तुम्हारी भी रात के पिछले पैर कई दफा आंख खुली होगी, लेकिन हम समझो कि शायद को हवा चली है, हमने मांगा नहीं। तो मांगना पहली शर्त है। उसके बाद जितने बड़े ख्वाब देखें लेकिन मांगने अल्लाह ताला से हैं। तो उसके बाद आ जाता है अब तक ड्रीम के बाद जाता है पैशन। हम में से बहुत सारे लोग अमीर होना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, दुनिया की सैर करना चाहते हैं, हज और उम्रे पे करना जाना चाहते हैं, लेकिन 50 साल के हो जाते हैं, इनमें से एक भी ख्वाब पूरा नहीं होता। सबसे बड़ी वजह जो निकली है वो ये निकली है कि वो मुंह से ये बात निकालते ही नहीं। वो डरते हैं किसी को बताते हुए कि यार मेरा तो ख्वाब गड्डी लेना, मेरा तो ख्वाब घर लेना है, मैं तो अगले साल टारगेट बना लिया कि हज पे जाऊंगा, उम्रे पे जाऊंगा। वो कहते हैं मैंने किसी को कहा अब को मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ये शक्ल देखी। तो ये आपका पैशन शो करना पड़ेगा। आपको किसी से दूसरे दोस्त से कहना पड़ेगा कि यार मैंने ये ख्वाब बना लिया ना, मैं बड़ा होकर एक एनजीओ बनाऊंगा जहां मैं गरीबों का ये होगा वो होगा। आप अपना ख्वाब बताएं लोगों को, क्योंकि कहते हैं जब आप दूसरों को बताते हैं अपना ड्रीम, अपना ख्वाब, अपना टारगेट, अपना पैशन से शो करते हैं। तो एक राइटर ने अपनी किताब में लिखा है इस कायनात की हर चीज आपके ख्वाब को पूरा करने में लग जाती है और आपका ख्वाब पूरा हो जाता है। ये नेचुरली होता है। क्लियर? क्लियर? एग्रीड? ओके। और लास्ट पे जो चीज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं वो सुन के ट्रेनिंग के अंदर तो कभी कभी हंसी भी आती है। आप देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, वो है लविंग फेलियर। क्या है जी? लविंग फेलियर, लव फेलियर। कि हम में से जिंदगी में वो सबसे बड़ा जो फेलियर है वो लोग मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं और इसको एक बना के एक बहुत बड़ी दीवार जो है वो अपनी सारी कामयाबियों को और एक ऐसे उस शख्स को कि जिसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया था कि वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सनीनी, 3 दफा अल्लाह ताला ने कसम उठाई थी, 4 दफा कसम उठाई थी। उठा के क्या फरमाया था कि मैंने इंसान को बेहतरीन बनाया। वो बेहतरीन इंसान एक जगह पे आके अपने आगे दीवार खड़ी कर लेता है कि मुझसे जिंदगी में कुछ नहीं होगा। लविंग फेलियर। बहुत सारे लोगों के हादसा स्टोरी के अंदर ये चीज होती है। बट हमने कभी सोचा है कि सबसे बड़ा लविंग फेलियर क्या है? सबसे बड़ा लविंग फेलियर है कि हम अल्लाह से कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठे कि अल्लाह से हमारी मोहब्बत कम हो जाए। और उसके बाद हमारे वालिदैन बड़ी मुश्किल से उन्हें पाल पोस के आपको बड़ा किया। बड़ी मुश्किल से कई वालिदैन ने फीसें दी कि हमारा बेटा पढ़ लिख जब बड़ा हो जाए तरक्की करेगा। बेटा हो गया, पढ़ लिख भी गया, तरक्की भी कर गया, लेकिन वो दो हस्तियों को भूल गया कि जिन्होंने इतनी मेहनत की थी। अगर आप
اس लव में फेल हो गए, ये इतना बड़ा फेलियर है कि शायद इसकी रिकवरी ना हो। एक यूनिवर्सिटी का वाकया है कि वालिदैन ने अपनी माँ ने अपनी ज्वेलरी बेची, बच्चे को पढ़ने यूनिवर्सिटी भेजा, कुछ अर्सा वो वापस ही नहीं आया बड़े अरसे बाद, तो माँ बाप ने कहा चलो चलते हैं। देसी घी की बनी चीज़ें उठा के जब पूछते, धक्के खाते, फटे पुराने कपड़े, पुराने जूते पहने, जब यूनिवर्सिटी के गेट से अंदर दाखिल हुए तो वो बेटा लॉन में क्लास फेलोज के साथ बैठा नजर आया। माँ ने दूर से पुकारा मेरा बेटा। वो उधर गए जब वालिदैन उसके, तो वो परेशान हो गया बजाय खुश होने के। तो उसके क्लास फेलोज ने पूछा ये कौन है, तो स्टूपिड ने कहा कि ये मेरे नौकर हैं। अगर ऐसी तालीम हमने हासिल की है तो इसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, वालिदैन रोने लग गए। अच्छा, रो इस बात पर नहीं रहे थे कि बेटे ने नौकर कह दिया था। अगर उन्हें ये पता चल जाता बेटे का ये जवाब है तो वो शायद वहीं पे जमीन दुआ करते कि अल्लाह में जमीन फट जाए और हम अंदर चले जाए। अच्छा, खुश किस बात पे थे, बेटे को पढ़ने लिखने के लिए भेजा था, बेटा पढ़ ले गया, इंग्लिश में बात करने लग गया, उसने बात इंग्लिश में की। तो ऐसी एजुकेशन का ऐसे ये अगर ये फेलियर हो गया ना वालिदैन वाला, तो इससे आगे ना कुछ है ना इससे पीछे कुछ। अगर अपनी स्टोरी शेयर कर दी अली भाई ने, मैंने लाइफ के अंदर बड़ी मुश्किल से इंटरमीडिएट किया और मैं जब रावलपिंडी में पहली दफ़ा नौकरी के लिए आया तो मुझे नौकरी नहीं मिली। तो मैंने कमेटी चौक ग्रेस कॉन्टिनेंटल होटल में ईंटें उठा के पहले दिन 80 रुपये कमाए और मजदूरी करते करते ऑफिस बॉय का काम किया। रहमानाबाद चौक में लासानिया रेस्टोरेंट है, उसकी जो रिसेप्शन है वहाँ पे ऑफिस होता था, वहाँ पे ऑफिस बॉय होता था, मैं उसकी गाड़ी तो होता था। करते करते फिर मैंने किसी ने कहा कि बेटा को काम सीखो, ये नौकरियों में कुछ नहीं रखा हुआ। मैंने टेलरिंग का काम सीखा, इलेक्ट्रीशियन का सीखा, प्लम्बर का सीखा, ये सारे काम मैंने अपने हाथ से किए हुए। और एक वक्त ऐसा है 9 साल गुजर गए, 9 साल 1995 से 2004 तक, तो मैं ये सोचता था कि मेरी जिंदगी इन्हीं कामों में से कोई एक काम करके गुजरेगी और कभी भी कोई तब्दीली नहीं आएगी, कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया, फिर एक तब्दीली आई। स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है लिसन। फिर एक तब्दीली आई, उस तब्दीली के नतीजे में वो शख्स जिसने 9 साल में साइकिल भी नहीं खरीदी थी, वो अगले 2 साल में नई होंडा सिविक खरीदता है। वो शख्स जिसने साल में भी इतने पैसे नहीं कमाए थे, 2 साल में भी इतने नहीं कमाए थे, वो 1 महीने में उतने पैसे कमाता है। वो शख्स जिसने कभी जहाज़ों पर बैठ के दुनिया घूमने का सोचा भी नहीं था, वो शख्स हर साल 2 से 3 ममालिक की ट्रैवलिंग करता है। वो शख्स जिसने कभी सोचा नहीं था कि अल्लाह के घर की ज़ियारत कभी बुढ़ापे में जाके होगी, पहले मुश्किल है, 6 दफ़ा अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करता है। फिर वो शख्स जिसने, थैंक यू वेरी मच, जिसने कभी ये सोचा नहीं था कि बेटा आई एम अ फेलियर, मैंने आपसे बड़ी मुश्किल से पास किया था, पहली दफा इम्तिहान किया तो फेल हो गया था, दूसरी दफा दिया तो फिर भी फेल हो गया, तीसरी दफा जाके पास हुआ, क्योंकि हमारे इलाके में रिवाज ही नहीं था पढ़ने का, कहते मैट्रिक करो फौज में जाओ, बस इससे आगे कुछ नहीं। वो फिर कोशिश की तो आगे जाने की, लेकिन नहीं, वो कल्चर नहीं था, माहौल नहीं था, तो मैं फेल हो गया। सो मैं ये सोचता था कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि किसी स्टेज पे जाके मैं परफॉर्म करूंगा और ट्रेनिंग दूंगा। लेकिन फिर इतनी बड़ी कामयाबी मिली, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कामयाबी दी। इस वक्त पाकिस्तान में ज़्यादा तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जो मेरे 2-4 हज़ार के सेमिनार मतलब हुए जिसमें वो आए, और उन लोगों ने अगर ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं। ये अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। और हमारी कंपनी की तरफ से चाइना में एक मुकाबला हुआ कि हमने बेस्ट प्रेजेंटर दुनिया से सिलेक्ट करने हैं। कोई पाकिस्तानी आगे नहीं बढ़ रहा था, मैंने स्टेप लिया, अल्लाह से दुआ मांगी और आगे बढ़ा। मैं स्टेज पे गया, मैंने परफॉर्म किया, 32 ममालिक से लोगों ने उसमें परफॉर्म किया, और 32 ममालिक में मैंने सब ये सोच के परफॉर्म किया था मेरा कुछ और हो ना हो, मेरे मुल्क के नाम क्या कि मेरा नाम तो आ जाएगा, लेकिन अल्लाह ने इतनी इज्जत दी कि 3rd पोजीशन वहां पे ली, 3rd पोजीशन। अच्छा, आज आगे निकल आए ना, जिंदगी आगे हर लम्हा आगे निकल रही है, तो मैं पीछे मुड़ के देखता हूं उस टाइम को कि ये सारा कुछ कैसे हुआ। तो सर बस लास्ट टर्निंग पॉइंट बता के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। तो बुजुर्गों की एक महफिल में 9 साल, मतलब ये कामयाबियों के बाद पीछे मुड़ के देखता हूं तो मेरी नज़र उस महफिल में जाती है जिसमें एक बुजुर्ग बैठे थे। तो मैं भी फ्रस्ट्रेटेड, परेशान था। तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल को लगी। उनका जिस शख्स को कामयाबी न मिल रही हो वो अपनी माँ के पाँव धो के पी ले, कामयाबी खुद उसके पास चल के आएगी। था तो मैं नालायक और मजदूर था, लेकिन इस बात पे यहां से यकीन किया, यहां से सुना ना, यहां से यकीन किया। उसी दिन घर आके माँ जी से कहा कि आपके पाँव धोने हैं, तो माँ ने डांट दिया, कहती है क्या बात है मेरे धोए हुए हैं। मैं कहने नहीं, वो बुजुर्गों की एक महफिल में गया था तो मैंने आपके पाँव धोने हैं। अच्छा, माँ ने इजाजत दी, मैंने माँ के पाँव धोए, तो जो पानी में गिलास में डाल के जब पीने लगा
تو ماں کہتی یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا ماں جی بزرگوں نے کہا تھا ماں کے پاؤں دھو کے پینے، زندگی میں جو کامیابی چاہیے خود چل کے آئے گی، تو میں یہ پانی پیوں گا۔ یقین کریں میں پانی پی رہا تھا، ماں کے دوپٹے کے نیچے سے ہاتھ اٹھے۔ ماں جی میرا اس بات پہ پکا یقین ہے کہ زندگی میں یہ جتنی کامیابیاں میرے پاس آئی ہیں جو دعا کے بعد ہے۔ تو لائف کے اندر میرا یہ ایکسپیرینس کہتا ہے، آج بھی والدین میرے ساتھ ہیں، میں میری ڈیوٹی لگی ہے، والد صاحب کو جاتے ہیں بزنس اپنا، وہاں پہ میں نے ان کو چھوڑ کے آنا ہے، لے کے جانا ہے۔ کئی مجھے دوستوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ یار قریب پہ چلے جائیں گے، ایمرجنسی آ جائے، تو میں کہا جو عبادت کرنے کا موقع مجھے ملا ہے میں اس کو کیوں ضائع جانے دوں۔ اللہ سبحانہ طرف ہے نا کہ ماں سے 70 گنا زیادہ میں انسان سے پیار کرتا ہوں۔ ماں کی محبت کی مثال دی اور فرمایا باپ کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہے، تو میں ہمیشہ صرف یہ کوشش کی ہے کہ میرے والدین مجھ سے راضی رہیں، اور آئی بلیو کہ آپ بھی یہ کوشش جاری رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ